भारत में इस वक्त समय हुआ है 6:23 और अमेरिका में फिलहाल सुबह तकरीबन 7:53 का वक्त है। इस वक्त वहां राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग रुकी हुई है और ठीक 2 घंटे 7 मिनट के बाद यानी कि उनके सुबह 10 बजे वोटों की गिनती फिर शुरू होगी। अभी तक की जो गिनती हुई है उसके मुताबिक ट्रंप 213 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत चुके हैं, जो बाइडेन 238 वोट जीत चुके हैं। बहुमत के लिए चाहिए 270 वोट। टक्कर कांटे की है, लेकिन अभी अमेरिका के ऐसे 6 राज्यों के फाइनल नतीजे नहीं आए हैं जहां पर ट्रंप को बढ़त मिली हुई है। बहुत आसान और सरल शब्दों में समझिए आखिर इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चल क्या रहा है। ये 3 तस्वीरें अपने अलग प्रेसिडेंट का इंतजार करते अमेरिका की हैं। गिनती से पहले एक तरफ व्हाइट हाउस की किलेबंदी कड़ी हो रही थी, तो दूसरी तस्वीर में बड़े बड़े शोरूम और मॉल्स के आगे तख्तों को लगाया जा रहा था। तीसरी तस्वीर न्यूयॉर्क में सड़कों पर पसरे सन्नाटे की है। नतीजों को लेकर लोग सहमे हुए हैं। रोशनी से नहाए न्यूयॉर्क में वैसे तो ये लाइटिंग अगले प्रेसिडेंट के स्वागत में की गई है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट को लेकर न्यूयॉर्क सहित पूरे अमेरिका में खौफ का माहौल है। अमेरिका के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अगले प्रेसिडेंट के फाइनल सिलेक्शन से पहले वायलेंस प्रोटेक्शन पर जोर है। दहशत इस बात की है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में गणतंत्र हावी न हो जाए। वजह खुद नतीजों से पहले ट्रंप और बाइडेन के बयान थे, क्योंकि दोनों हार मानने को तैयार हैं, अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। I appreciate it very much, and I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight, and a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. You know, we could know the results as early as tomorrow morning. But it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. Hey, John, the Gov, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. सुना आपने, काउंटिंग के बीच दोनों प्रतिद्वंदियों में जुबानी जंग भी जारी है। बाइडेन ने कहा कि वो नतीजे का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन जीत की उम्मीद जता रहे हैं, जबकि ट्रंप ने कहा कि वो चुनाव जीत चुके हैं और बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इस बात की आशंका भी जताई कि बाइडेन की पार्टी बेईमानी करवा सकती है। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. अमेरिकी चुनाव रुझानों में ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप अभी बहुमत से 57 वोट दूर हैं, तो बाइडेन को जीत के लिए और 32 वोट की जरूरत है। जीत के लिए जरूरी वोट उन्हें कहां से मिल सकता है, सबसे पहले इसे जान लीजिए। कुल 6 राज्य हैं, इसमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, इसके अलावा अलास्का की सीट है। ये वो तमाम राज्य हैं जहां से जीत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को हासिल करनी पड़ेगी। जॉर्जिया भी इसमें है। ये कुल मिलाकर 80 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुमत के आंकड़े से कुछ पीछे चल रहे हैं। इसमें खास तौर पर पेंसिल्वेनिया की 20 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसका मामला अब अदालत में जरूर पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इसका ऐलान खुद कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगर पेंसिल्वेनिया तक नौबत ना भी आए तो भी बाकी राज्यों में अगर जीत मिल जाती है डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। असल में ट्रंप जिन 6 राज्यों में आगे हैं वहां 80 इलेक्टोरल वोट हैं। 6 स्टेट में 5 स्विंग स्टेट हैं और इन राज्यों में काउंटिंग खत्म होते ही विक्ट्री टैली ट्रंप के पक्ष में जा सकती है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत को तय मान रहे हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका के 18 स्टेट में ट्रंप या तो जीत चुके हैं या फिर लीड बनाए हुए हैं। जितना भी आपको ये लाल राज्य, जो लाल रंग जिन जिन राज्यों में दिखाई दे रहा है, ये सब रिपब्लिकन राज्य हैं और इनमें जो गहरे लाल हैं वो जो राज्य जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो हल्के लाल निशान में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी रिपब्लिकन पार्टी इन राज्यों में लीड कर रही है। तो टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, आयोवा, मोंटाना, व्योमिंग, यूटा, ओक्लाहोमा, कैंसस, नेब्रास्का, नॉर्थ और साउथ डकोटा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है। इसके अलावा अलाबामा, मिसिसिपी, लुसियाना और मिसौरी और आर्कनसास में भी ट्रंप जीत चुके हैं। लेकिन अभी जितने राज्यों में काउंटिंग जारी है उनमें डोनाल्ड ट्रंप का आगे होना, लीड में होना, ये उनके लिए ज्यादा अच्छी खबर है। फ्लोरिडा में ट्रंप की जीत काफी मायने रखती है। फ्लोरिडा ट्रंप का होम स्टेट है। माना जाता है कि अमेरिका में सत्ता का रास्ता फ्लोरिडा होकर जाता है। अगर इसे आसान और भारत का उदाहरण देकर समझे तो अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट की वही अहमियत है जो भारत में उत्तर प्रदेश की है। जैसे हिंदुस्तान की सियासी दुनिया में ये कहावत मशहूर है कि जिसने यूपी जीत लिया उसके लिए दिल्ली दूर नहीं, ठीक वैसे ही अमेरिका में व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को फ्लोरिडा में जीत जरूरी होती है। साल 2000 से लेकर अब तक जो भी कैंडिडेट फ्लोरिडा से जीता वही अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। ऐसे में फ्लोरिडा को ट्रंप ने तो जीत ही लिया है, लेकिन फ्लोरिडा के साथ साथ अभी तक ट्रंप को किसी स्टेट से कितनी सीट मिल रही है ये भी समझिए। टेक्सास बहुत बड़ा राज्य है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत हुई है। 38 इलेक्टोरल कॉलेज वोट टेक्सास से ट्रंप को मिले। फ्लोरिडा दूसरा बड़ा राज्य, 29 सीटें, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें खुद को जीत की उम्मीद नहीं थी, पहली बार वो जीते हैं। ओहायो में 18 सीटें हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को मिली हैं। इसके अलावा यूटा में 6 वोट्स हैं, हम जिन्हें सीटें कह रहे हैं उन्हें आप वोट माने, इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं ये। ओक्लाहोमा में 7 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, ये भी ट्रंप को मिले हैं। इसके अलावा टेनेसी के 11 वोट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए हैं। यहाँ पर ये राज्य भी रिपब्लिकन राज्य साबित हुआ। इंडियाना के 11 वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए, ऐसे ही केंटकी के 8 वोट्स भी डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए उनके खाते में जाकर के जुड़े। साउथ कैरोलिना के 9 वोट्स, इसके अलावा मिसौरी के 10 वोट्स इलेक्टोरल कॉलेज के वो भी डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। अलाबामा के 9 वोट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में ही इस बार गए हैं। फिर बता दें ये वो स्टेट्स हैं जो जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। लुजियाना की 8 वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में ऐड हुए हैं और नॉर्थ डकोटा के 3 वोट्स भी डोनाल्ड ट्रंप को ही मिले हैं। साउथ डकोटा में भी 3 वोट्स हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं। वायोमिंग के 3 वोट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में ही जुड़े हैं।
तो इस लिहाज से आप देखें तो ये सारी वो स्टेट्स हैं जो कि इस बार लाल रंग में हैं, यानी कि नेब्रास्का भी उसमें शामिल है, 5 वोट्स हैं और ये भी डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, और कैंसस के 6 वोट्स भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं। बावजूद इसके ट्रंप और बाइडेन के बीच टक्कर बेहद कांटे की है। 2000 में भी ऐसे ही कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, जब रिपब्लिकन पार्टी से जॉर्ज डब्ल्यू बुश की डेमोक्रेटिक पार्टी से अल्बर्ट गोर से भिड़ंत हुई थी। कड़ी टक्कर के चलते उस बार भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और नतीजे 1 महीने बाद आए थे। 20 साल पहले जैसे अल्बर्ट गोर ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को टक्कर दी थी, वैसे ही इस बार ट्रंप को जो बाइडेन मुकाबला दे रहे हैं। अभी तक 11 स्टेट्स में बाइडेन ट्रंप से लीड लिए हुए हैं। इनमें जो बड़े राज्य हैं उनमें कैलिफोर्निया है, न्यू मैक्सिको है, कोलोराडो, इलिनॉय, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, यहाँ पर वो जीत चुके हैं। इसके अलावा मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी और डेलावेयर में भी जो बाइडेन की जीत हो चुकी। तो ये ब्लू स्टेट्स हैं, वो राज्य जहाँ पर जो बाइडेन जीते हैं और अभी तक वो लीड कर रहे हैं। जितनी डिक्लेयर्ड स्टेट्स हैं या जहाँ पर आप कह सकते हैं कि निर्णायक बढ़त हासिल हो चुकी किसी भी उम्मीदवार को, तो अभी तक फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा हमने आपको बताया कि वो राज्य जहाँ काउंटिंग अभी बाकी है और ट्रंप का उनमें लीड करना, ये एक एज डोनाल्ड ट्रंप को देता हुआ फिलहाल दिखाई देता है। जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका देते हुए लंबे वक्त बाद एरिजोना स्टेट पर कब्जा कर लिया है। फ्लोरिडा की तरह ही अमेरिका का एरिजोना स्टेट भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत का एग्जाम्पल लेकर समझे तो एरिजोना की सियासत काफी हद तक पश्चिम बंगाल जैसी है। जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश और म्यांमार के घुसपैठियों का मुद्दा उठता रहा है, ठीक वही हाल एरिजोना का है। घुसपैठ या कहें कि अवैध अप्रवासन के खिलाफ ट्रंप ने वहां बेहद सख्त रुख अपनाया था, इसीलिए माना जा रहा है कि वहां बाइडेन को जीत मिली है। लेकिन और कौन कौन से स्टेट हैं जो बाइडेन के नाम रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। जो बाइडेन को किस राज्य से कितने इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं, यह भी हमको समझना चाहिए। तो जो बाइडेन यानी ब्लू स्टेट्स कौन कौन सी रही? कैलिफोर्निया में जो बाइडेन की पार्टी की जीत हुई, इसके अलावा वॉशिंगटन में भी 12 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो बाइडेन को मिले हैं। कोलोराडो के 9 वोट्स और डेमोक्रेट पार्टी के पास गए हैं जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने के लिए। ओरेगॉन के 7 इलेक्टोरल कॉलेज वोट भी जो बाइडेन को ही मिले हैं, यहां पर ट्रंप की हार हुई है। एरिजोना में भी ट्रंप की हार, जो बाइडेन की जीत, 11 वोट्स जो बाइडेन के नाम। इसके अलावा जो ब्लू स्टेट और रहे वो है इलिनॉय, बड़ा राज्य, 20 वोट्स वो भी जो बाइडेन को मिले हैं। मिनेसोटा के 10 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स भी जो बाइडेन के नाम रहे। इसके अलावा वर्जीनिया में भी जीत हुई है जो बाइडेन की, 13 वोट्स हैं यहां पर। और न्यूयॉर्क भी 29 वोटों के साथ इस बार जो बाइडेन के साथ गया। बड़ा राज्य न्यू जर्सी के 14 वोट्स भी जो बाइडेन के पास गए हैं। इसके अलावा मेरीलैंड के 10 वोट्स वो भी जो बाइडेन के खाते में जुड़ने जा रहे हैं। और मैसाचुसेट्स के 11 वोट्स पर भी जीत हुई है इस बार जो बाइडेन की। न्यू मैक्सिको के 5 वोट्स हैं, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी को मिले। ये सारे वो राज्य हैं जो चाहते हैं कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बने। इलिनॉय की 20 सीटें भी जीती हैं जो बाइडेन ने। न्यूयॉर्क की 29 सीटें जो बाइडेन के खाते में जुड़ी हैं जाकर के। इसके अलावा वर्जीनिया के 13 इलेक्टोरल कॉलेज वोट भी जो बाइडेन को ही मिले हैं। अमेरिका में नए राष्ट्रपति 20 जनवरी 2021 को शपथ देंगे। ये तो पहले से ही तय है, लेकिन शपथ लेने वाले ट्रंप होंगे या बाइडेन, इस पर फाइनल फैसला पूरी तरह से काउंटिंग खत्म होने के बाद ही हो पाएगा। आपने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को मिली सीटों की एक्चुअल पोजीशन देखी। अब कुछ देर के बाद दोबारा गिनती शुरू होगी तो उसके कुछ आने वाले घंटों में स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन अभी यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रंप किस बिना पर यह दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत चुके हैं। इस दावे को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। अमेरिका के बीच चुनावी रण में इस पार या उस पार की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज कुछ ऐसा बना रहा। अपनी सियासी छवि के मुताबिक मंच पर बिंदास, बेपरवाह और अक्सर बेबाक। अमेरिका के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे दिशा तय होगी कि अमेरिका किधर जाएगा, इधर या उधर। अगर उधर गया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति को पता है अगले 4 साल का मौका नहीं मिला तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ट्रंप के साथ रिपब्लिकन के हाथ सेकंड टर्म यानी 8 साल बाद आई सत्ता भी और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला उनका सपना। ट्रंप की पूरी चुनावी तैयारी ही इसी लिहाज से तैयार है। If you want your children to be safe, अगर आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने मूल्यों की मर्यादा और अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं, जाइए और एक शख्स को वोट दे आइए जिसका नाम है प्रेसिडेंट ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 74 साल के हो चुके हैं और 70 पार की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले पहले शख्स हैं। लेकिन अब 74 साल की उम्र को लेकर मीडिया में तमाम टीका टिप्पणियों के बावजूद दूसरे टर्म के लिए जोर आजमाइश अभूतपूर्व रही। कभी ट्रंप ने खुद को कई पीढ़ियों के राष्ट्रपति से बेहतर बताया तो इस बार बड़े गुमान के साथ अमेरिका को फिर द ग्रेट बनाने की बात दोहराते रहे। And we have made America proud again. We have made America safe again. And we will make America great again. Words cannot express. ट्रंप ने दुहाई उस पारंपरिक भरोसे को भी दी जिसमें अमेरिकी वोटर कई राष्ट्रपतियों को दूसरा मौका दे चुके हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर नजर डालें तो 45 में से 13 को मिल चुका है 2 टर्म। 1993 और 1997 में बिल क्लिंटन राष्ट्रपति चुने गए। 2001 और 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बने। 2009 और 2014 में बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। 1933 से 1945 तक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट तो तीसरे टर्म में भी चुने गए थे। हम पहले उम्मीद जीतना चाहते हैं। अगले 4 साल के लिए दोबारा आएंगे तो हम दोबारा वो काम कर पाएंगे जिससे हमने शुरू किया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप अपने 4 साल को बेमिसाल बताते हुए दूसरी बार जीतने की अपील। लेकिन दिलचस्प ये भी है, चुनाव अभियान से लेकर प्रेसिडेंशियल डिबेट तक ट्रंप के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रही वो 4 साल के दौरान उनके कामकाज ही रहे। कोरोना और मेडिकल फेलियर, नस्ली तनाव और भेदभाव, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी, वीजा इशू और विदेश नीति। मोटे तौर पर ये 4 सेगमेंट्स हैं जिनकी सुर्खियां अमेरिका समेत दुनिया भर की मीडिया में छाई रही। कोरोना के शुरुआती दौर में लापरवाही और हालात बिगड़ने पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की खुली पोल ने ट्रंप को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी तरह अर्थव्यवस्था में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी के साथ वीजा नियमों में सख्ती और अक्खड़ विदेश नीति की वजह से दुनिया के कई देशों और सैन्य संगठनों से तनातनी का मुद्दा ट्रंप के खिलाफ विरोधियों का ट्रंप का बनता गया। He hasn't laid out anything. ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। इन्हें फरवरी में ही पता था कि संकट कितना बड़ा है, बीमारी कितनी खतरनाक है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? कुछ करने की बजाय इन्होंने ये कहा कि मैंने लोगों को अलर्ट नहीं किया ताकि अमेरिका के लोग घबरा जाएंगे। सच तो ये है कि पैनिक की असली वजह ये खुद है। You don't panic. राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों को ही सामने रखकर घेरते रहे। इसके पलटवार में ट्रंप उन्हें स्लीपी बाइडेन करार देते रहे। अपने मुकाबलेदारों पर ट्रंप के पलटवार करने का ये अंदाज बराक ओबामा के दौर से ही सुर्खियों में रहा है। जो बाइडेन तो उनसे 3 साल बड़े हैं, लिहाजा जो बाइडेन की 77 साल की उम्र को लेकर भी निशाना बनाते रहे। लेकिन अमेरिका में पिछले 10 महीने में जो कुछ हुआ है वो ट्रंप के लिए उम्र से भी ज्यादा मुसीबत बना। 85 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। 2,25,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। 2.5 करोड़ अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छूट गई। बेरोजगारी दर 3.5 से 14.7% हो गई। अफोर्डेबल केयर एक्ट हटाने की कोशिशों को लेकर आलोचना हुई। ब्लैक लाइव मैटर्स आंदोलन में ट्रंप के बयानों से गुस्सा बढ़ा। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के चहेते जज की नियुक्ति से विवाद बढ़ा। दरअसल ट्रंप ने अपने कार्यकाल में नाकामियों को लेकर बने रहे माहौल को देखते हुए एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं कर पाएंगे, वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। इसके लिए ट्रंप ने चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में खाली जज के पद पर अपने भरोसेमंद एमी कोरेन बेरेट की नियुक्ति करा दी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 9 हो गई, यानी चुनाव में धांधली की स्थिति में फैसला किसी भी तरह बराबरी पर नहीं हो सकता। आखिरी बार ये साल 2000 में हुआ था, जब जॉर्ज बुश और डेमोक्रेट उम्मीदवार अल गोर के बीच फासला इतना कम था कि फ्लोरिडा के वोटों की दोबारा गिनती को लेकर विवाद छिड़ गया। 2016 के चुनाव में ट्रंप ने भी डाक के जरिए दिए गए वोटों की वैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए। लिहाजा ट्रंप के बयान को इसी तरह की मंशा से जोड़कर देखा गया। ट्रंप ने ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर बयान भी बिना लाग लपेट के दिया था। आपको पता है, मैं काफी वक्त से बैलेट पेपर में गड़बड़ियों को लेकर चिंता जता रहा हूं। बैलेट्स किसी डिजास्टर से कम नहीं है। हम इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, बेहद पारदर्शी तरीके से। लेकिन आप जानते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ये डेमोक्रेट्स को खूब पता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो पाएगा और ये मेरे साथ जारी रहेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिकी चुनाव में जबरदस्त गुटबंदी हुई। समर्थकों के हथियार जमा करने की खबरों के बीच हिंसा की आशंका जताई गई। अमेरिका के 2 पूर्व अटॉर्नी जनरल ने तो यहां तक चेतावनी दे दी, चुनावी नतीजों को कबूल नहीं करने का अंजाम गंभीर हो सकता है। ऐसी आशंकाओं के बीच चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग तक कुछ मुद्दे और भी चर्चा में रहे। इसमें बड़ा हिस्सा ट्रंप के चुनावी वादों का था, जिसके साथ अमेरिका को प्लान तो है अमेरिका को उबारने का, लेकिन विश्वसनीयता सवाल भी सुर्खियों में बना रहा। 2020 के अंत तक कोरोना वैक्सीन ले आएंगे, 2021 तक आगे की महामारी से बचाव के उपाय कर लेंगे, चीन पर निर्भरता खत्म कर अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाएंगे, कम प्रीमियम पर हेल्थ केयर इंश्योरेंस मुहैया कराएंगे, अवैध प्रवासियों को सभी वेलफेयर फंड की सुविधा से वंचित करेंगे, कम वेतन वाले विदेशियों के बदले अमेरिकियों को नौकरी से निकालने पर प्रतिबंध लगाएंगे, अमेरिकी हितों को नुकसान करने वाले आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, दूसरे देशों में युद्धरत सैनिकों को वापस बुलाएंगे। मिडिल ईस्ट में बिना किसी हिंसा के शांति हमने बनाए रखने में मदद की है। कोई खून नहीं बहा। यूएई समेत 3 देशों ने शांति समझौता मंजूर किया। सूडान समेत और भी तमाम देश हैं जो इस रास्ते पर हैं। इनकी तादाद 10 से भी ज्यादा है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिना दी, मगर इस बार 2 चीजें दिलचस्प हुई। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के मुताबिक रिपब्लिकन के बाद डेमोक्रेट्स को जिस तरह सत्ता मिलती आई है, चुनावी सर्वेक्षणों में वैसी ही लहर दिखाई दी। दूसरी बात है पूरे अमेरिका में रिकॉर्ड वोटिंग, जो वोटिंग सेंटर से लेकर पोस्टल बैलेट्स में भी देखी गई। ट्रंप का दावा है ये पूरा उत्साह उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए दिखा। आपने ट्रंप के पक्ष में और उनके खिलाफ जानने वाली हर बात समझी। अब डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की कमजोरियां और ताकत समझते हैं। किस दम पर बाइडेन ने ट्रंप को कड़ी टक्कर दी और जीत की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। साल के बुजुर्ग या 77 साल के जवान। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में यह सवाल जो बाइडेन के सिलसिले में बार बार उठा, मगर डेमोक्रेट्स ने उन्हें बड़े मंथन के बाद मैदान में उतारा था। वाशिंगटन डीसी में ट्रंप जैसे आउटसाइडर के मुकाबले जो बाइडेन एक अनुभवी इनसाइडर माने गए। डोनाल्ड ट्रंप कारोबारी थे और 2016 में न्यूयॉर्क से सीधे व्हाइट हाउस आ गए, जबकि वाशिंगटन डीसी में बाइडेन का करियर 47 साल का है। बाइडेन 1973 में पहली बार डेलावेयर से सीनेटर बने। जो बाइडेन ने डेलावेयर को 2009 तक रिप्रेजेंट किया। 2009 में बाइडेन को ओबामा ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ओबामा के दोनों कार्यकाल में वो वाइस प्रेसिडेंट बने रहे। जैसे इतना ही काफी नहीं था, उनके करिकुलम वियते में 2 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना भी शामिल था। जी हाँ, 1988 और 2008। लंबे राजनीतिक करियर और पिछले 2 चुनावों के अनुभव के चलते बाइडेन को स्किल्ड कैंपेनर की तरह भी देखा गया, जिसका पूरे अमेरिका से अच्छा कनेक्ट। अमेरिका इस वक्त एक साथ कई मुसीबतों का सामना कर रहा है। देश के ऐसे हालात तो कभी नहीं थे, कम से कम मेरी याद में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें विनम्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा हो।
ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही ये सारी बातें जाने कहां गुम हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि कल का दिन अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत का दिन है। वो मीन्स जज्बाती। जी हाँ, जो बाइडेन को अमेरिकन पॉलिटिक्स के दिल से बोलने वाले बुजुर्ग की तरह देखा जाता है। बोलते बोलते बहकना बाइडेन की अदा रही, जिसे बाद में उनकी पीआर टीम को मैनेज तक करना पड़ा। मगर बाइडेन के पास वोटर को लुभाने का कुदरती हुनर है। उनकी मीठी जुबान को आसानी से लोगों का दिल जीतने लायक माना गया। वो बड़ी सहजता से आम आदमी से नाता जोड़ लेते, बड़ी सहजता से भीड़ का हिस्सा बन जाते, लोगों से मिलते, हाथ मिलाते, उन्हें गले लगाते, लोगों के साथ सेल्फी लेते, जैसे कोई बुजुर्ग फिल्म स्टार हो जो अचानक फैंस के बीच पहुंच गया हो। बाइडेन अच्छे ओरेटर हैं। जी हाँ, आज जब दुनिया में रोबोट जैसे नेताओं की भरमार है जो सधे हुए बयान देते हैं, लिखा हुआ पढ़ देते हैं, तब बाइडेन एक ऐसे वक्ता हैं जिसे सुनकर लगता है कि वो दिल से बोल रहे हैं। बाइडेन के मुताबिक बचपन में हकलाने की आदत की वजह से उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना नहीं आता। वो जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। बाइडेन के भाषण में वो दिलकशी है जो अमेरिका के ब्लू कॉलर कामकाजी लोगों की भीड़ में अचानक अपने भाषण से जोश भर देती है। इस देश को उसकी रीढ़ वापस दिलानी है। आपको पता है कि इस देश को मिडिल क्लास ने बनाया है। अमेरिका को वॉल स्ट्रीट ने नहीं बनाया, मिडिल क्लास ने बनाया है। यूनियनों ने इस देश को बनाया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे जॉन कैरी ने एक बार कहा, वो लोगों को अपनी ओर खींचकर उन्हें गले लगा लेते हैं। कई बार तो लोग उनकी बातों से ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं और कई बार वो लोगों को खुद ही अपने आगोश में भींच लेते हैं। वो दिल को छू लेने वाले राजनेता हैं और उनमें कोई बनावट नहीं है। वो कोई ढोंग नहीं करते, बड़े सहज भाव से लोगों में घुल मिल जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी कुछ मुद्दे थे जिन पर बाइडेन को एज मिलती नजर आ रही थी। इसलिए डेमोक्रेट ने बतौर उम्मीदवार जो बाइडेन को ज्यादा तरजीह दी। ये वो मुद्दे थे जो आम जनता के मतलब के थे। कोरोना पैंडेमिक कहर बरपा कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप या तो इसकी उपेक्षा कर रहे थे या चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मगर बाइडेन ने लगातार मास्क पहनकर जनता को जागरूक किया। कोरोना से बर्बाद इकोनॉमी से त्रस्त जनता के लिए ये एक संदेश भी था। इसके अलावा ब्लैक लाइव मैटर्स का समर्थन करके बाइडेन ने अश्वेतों से जुड़ाव बनाया। बराक ओबामा का पहले ही उन्हें समर्थन था, प्रचार में सहयोग भी मिला। हर तरह के अल्पसंख्यक, गैर अश्वेत, समलैंगिक वोटर भी उनके साथ दिखा। शरणार्थियों और बाहरी लोगों के प्रति बाइडेन का रवैया सहानुभूति वाला था। जो बाइडेन विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, सीनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी का लंबा अनुभव उन्हें कूटनीति में मदद करता है। Let's show them who we are. We choose hope over fear. ये जोसेफ बाइडेन की बड़ी सियासी ताकत है। वो दावा बढ़ चढ़ के करते हैं कि मैं पिछले 45 बरस में कमोबेश दुनिया के हर बड़े राजनेता से मिल चुका हूं। Trump likes to portray himself as a tough guy, the macho man. ट्रंप खुद को एक बहुत मजबूत नेता बताते हैं, खुद को माचो मैन कहते हैं। उनको साबित भी करना चाहिए, बेचारा माचो मैन। दोस्तों, आपने पिछली बार कब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहते सुना था कि दुनिया उसकी बात को ध्यान से सुने क्योंकि वो बहुत मजबूत नेता हैं? ऐसा कभी हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशंस में बोले और दुनिया के नेता उसके सामने ही उसकी हंसी उड़ाएं? पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो के सम्मेलन में गया हो, दुनिया के दूसरे नेताओं से मिला हो, चांसलर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों से मिला हो और उसके कमरे के बाहर जाने से पहले ही लोग उस पर हंसने लगे हों? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे राष्ट्रपति रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के पालतू कुत्ते जैसा बर्ताव करते हैं? Folks, and can you believe we're a president who acts like Vladimir Putin's puppy? हालांकि अमेरिकन वोटर्स को भले ही बिडेन के इस दावे से तसल्ली हो कि उनके पास राष्ट्रपति बनने का पर्याप्त अनुभव है, लेकिन कूटनीतिक मामलों में बाइडेन संभल कर चलने वालों में गिने जाते हैं।
जोसेफ बाइडेन ने 1991 के खाड़ी युद्ध के खिलाफ वोट दिया था, मगर 2003 में उन्होंने इराक पर हमले के समर्थन में वोट दिया। बाद में वो इराक में अमेरिकी दखल के मुखर आलोचक बन गए। पाकिस्तान के एबटाबाद में कमांडो कार्रवाई के भी वो खिलाफ थे। इसी कोवर्ट ऑपरेशन में आतंकी ओसामा बिन लादेन मारा गया था। बराक ओबामा को दूसरे टर्म के चुनाव में इस कार्रवाई का लाभ मिला। बहुत से अमेरिकन को लगता है कि जोसेफ बाइडेन कुछ ज्यादा ही शांति दूत बनते हैं। विदेश नीति से जुड़े ज्यादातर मामलों में बिडेन का रवैया मध्यमार्गी रहा है। ट्रंप चीन को लेकर जितने आक्रामक रहे, जो बाइडेन नहीं थे। एक आखिरी बात जिससे बाइडेन आम अमेरिकन की सहानुभूति जीतते हैं, उनके परिवार में मौत की ट्रेजिक घटनाएं। जो बाइडेन के लिए यह दर्दनाक है, मगर मौत एक ऐसा मसला है जहां वो राजनेता के मुकाबले अमेरिकी जनता के ज्यादा करीब थे। जब बाइडेन पहली बार सीनेट का चुनाव जीतकर शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नाओमी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। इस दुर्घटना में उनके दोनों बेटे ब्यू और हंटर भी जख्मी हो गए। बाद में ब्यू की भी 40 साल की उम्र में 2015 में ब्रेन ट्यूमर से जूझते हुए मौत हो गई। इतने करीबी लोगों को गंवा देने के कारण जो बाइडेन आम अमेरिकन की नजर में पीड़ित की तरह है। इतनी बड़ी हस्ती और सत्ता के बेहद करीब होने के बावजूद बाइडेन ने वो दर्द अपनी जिंदगी में झेले जिनसे आम इंसान का वास्ता पड़ता है। ये बात कहने में भले ही अजीब लगती हो, मगर वोटर के बैक ऑफ द माइंड मौजूद रहती है। बहरहाल ट्रेजेडी से इतर मजे की बात यह है कि जिस बाइडेन ने 2016 में तसल्ली जताई कि वो राष्ट्रपति नहीं बने, उसी बाइडेन ने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब राजनेताओं को इतना फ्लेक्सिबल तो होना ही चाहिए। और अब वक्त है क्रिकेट धमाका का। कल से आईपीएल 13 में प्लेऑफ मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। कल मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर होगी। तो सिर्फ 60 सेकंड के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ इंडिया टीवी के क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा होंगे, जो आपको बताएंगे आखिर कल कौन मार सकता है बाजी।